امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس حالات میں ٹھیک ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی اسمبلی پنجاب کے وزیر انسانی حقوق اور مناٹی افیئرس کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں گورنمنٹ کے اقدامات اور کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے اپڈیٹ دیں گے۔ پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک مفصل رپورٹ آج کی دے سکیں جو اپڈیٹ ہے۔ اسی طرح چونکہ فادر جی بعد میں تعارف بھی دیتے ہیں، لیکن مختصراً یہ بتاتا جاؤں کہ آج ہمارے ساتھ خوش قسمتی ہماری بھی ہے، جہاں منسٹر ہیں وہاں ہمارے ساتھ تمینہ رانا صاحبہ بھی ہیں، بڑے عرصے کے بعد جو اس نیٹ ورک کی کردہ درتا بھی ہیں۔ ان کے ساتھ پھر کراچی سے ہمارے ساتھ ناصر رضا ہیں جو جرنلسٹ بھی ہیں اور بین الاقوامی نظر بھی رکھتے ہیں حالات پہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ شری اسلم ہیں، اکثر سوری کے معذرت کے ساتھ ان کا نام میری زبان سے بہت ساری شیری ہیں اس لیے غلط بھی نکل جاتا ہے، اس کے لیے میں ان کے پیشی معذرت کر لیتا ہوں اگر بیچ میں ہوا اٹک سے دیں گے۔ پھر اسی طرح ہمارے ساتھ فیصل الیاس ہیں، ایک ینگسٹ جرنلسٹ ہیں اور ہمارے روح رواں آج کے میزبان فادر مالی نذیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ خود ہی ہم ان سے تعارف لے لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام مہمانوں کو۔ اس کے ساتھ میں فادر مانی کو ہینڈ اوور کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جی فادر مانی صاحب۔ جی بہت شکریہ سیمسن صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اقلیتی صوبائی وزیر انٹرفیت ہارمنی کے اور انسانی حقوق کے جناب اعجاز عالم اگسٹین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تہمینہ رانا ہے، فیصل الیاس ہیں، ناصر رضا ہیں اور شیریں اسلم ہے۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن ہے اور بڑی عجیب صورتحال ہے، لیکن مختلف ممالک میں پاکستان میں بھی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ سرگرم ہے کہ کس طرح اس کی روک تھام کی جائے اور لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ تو آج ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کی طرف بڑھیں باری باری۔ تو سب سے پہلے میں تہمینہ رانا سے درخواست کروں گا کہ وہ بین الاقوامی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیں۔ تہمینہ رانا۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ پہنچے ہیں جو ہو چکی ہیں ہو چکی 100 کے قریب ٹوٹل اموات کی ہیں۔ اور اگر یو کے کنفرم کیسز کی میں بات کروں تو اس وقت یہاں پہ 98,476 کنفرم کیسز موجود ہیں، جبکہ ٹوٹل ڈیتھس جو ہیں وہ 12,868 ڈیتھس جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ امریکہ میں ابھی تک ریکارڈ وہ 1000 دن کے اندر کورونا وائرس کے ذریعے۔ اچھا کہ میں یہ بات کرتی چلوں کہ اس دنیا بھر میں اور کیا چل رہا ہے۔ گو جانتے ہیں کہ کورونا وائرس پوری دنیا متاثر ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کا کہنا ہے کہ he will halt funding to the World Health Organization because of its role in severely mismanaging the spread of coronavirus۔ دوسری طرف دیکھیں تو ایک لوگ جو کے طور اسپین کنسٹرکشن اور مینوفیکچرنگ اسٹاف جو ہے اس کے لیے لاک ڈاؤن میں
थोड़ी सहूलत जो है नरमी करने का सोचा है। और इस वक़्त जो सूरत में मैं कोई के अ, मज़ीद 3 हफ्तों तक लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया जाए। क्योंकि अपने किया है, यही सूरत-ए-हाल अमेरिका में भी चल रही है और दीगर ममालिक में भी यही सूरत-ए-हाल चल रही है। इसके अलावा मैं आपको जो बड़ी-बड़ी इस वक़्त की जो खबरें हैं उनमें से मैं बताती चलूँ कि डिवाइस फ्रॉम वॉलंटियर चैलेंज यूटीएम अप्रूवल। उसके बाद तमीना जी, आपका वो नेट प्रॉब्लम हो रहा है, आगे जो है वो आवाज बेहतर तरीके से नहीं जा रही। इसको या तो थोड़ा सा जगह अगर चेंज कर दोगे। जी, मैं जगह बदलती हूँ। जगह आप जरा बदलें। रोके, इसको रोके, जी रिकॉर्डिंग के जी, लिए रोके, मैं जरा 1 ना, मिनट मैं आती हूँ। नाजरीन कुछ आप फनी जगह बता नहीं रहे तो वो जगह बदले कैसे? हाँ जी साहब, ये जी, ऑनलाइन किस चैनल पे जा रहा है? आपकी आईडी से जा रहा है ऑनलाइन? हाँ जी, हाँ जी, आप देखें वहाँ पे नाजरीन आपसे माजरत खवाह हैं, थोड़ा सा फनी खराबी की वजह से हमारा थ्रू नहीं हो रहा। तो जिस तरह ही तमीना साहबा बेहतर उनके नेटवर्क चलता है तो हम आपको अ, तमीना राना की तरफ लिए चलते हैं। तमीना राना साहबा, तमीना राना साहबा, आपका नेट देखें जरा, चेक करें जरा। जी, नहीं अभी नहीं सेट हुआ, या फिर हाँ जी, अभी देखें आप देखें। जी, हम नाजरीन ऐसा करते हैं कि हम इस वक्त कराची की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही इनका नेटवर्क बेहतर होता है हम वापस आ जाते हैं। नासिर रजा साहब, आप नज़र रखते हैं कराची के अलावा दूसरे पूरे पाकिस्तान पे भी आप थोड़ी सी रिपोर्ट पेश करें। मेरा ख्याल है तहमीना बेहतर हो गया था काम। चलें जी, तमीना जी साहबा, तहमीना आप जारी रखें। हाँ जी प्लीज। जी, हाँ जी तमीना साहबा, प्लीज कैरी ऑन योर रिपोर्ट। जी, शुरू से स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है? अगर प्लीज तो फिर वहीं से ऐड कर लेती जी, हूँ। जी आ रहे हैं मुझे प्रॉपर्ली? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। तहमीना राना हाजिर खिदमत है। आज न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से हम आपके लिए जो ओवरऑल रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, उसमें हम दुनिया भर में होने वाली अमवात और कंफर्म केसेस जो हैं उनके मुतालिक बात करेंगे। पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि इस वक्त ग्लोबल कंफर्म केसेस जो हैं वो तकरीबन 20,65,906 के करीब केसेस पहुंच चुके हैं। अगर अमवात की बात की जाए तो कोरोना इस वक्त 13,07,124 लोगों को निगल चुका है। और यूके कंफर्म केसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 98,476 केसेस जो हैं वो कंफर्म केसेस हैं, 98,476 केसेस। जबकि टोटल डेथ रेट जो है वो टोटल डेथ जो हुई हैं यहाँ पे 12,868। और अगर अमेरिका की बात की जाए
तो अमेरिका में सूरत हाल इसी तरह से संगीन है। अब तक का रिकॉर्ड जो है अमेरिका में 2000 अमवात एक ही दिन में हो चुकी हैं कोरोना के हवाले से। बाकी स्पेन में इस वक्त गवर्नमेंट ने सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन में थोड़ी नरमी जो है वो इख्तियार करने का सोचा है, ताकि कंस्ट्रक्शन और दीगर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको थोड़ी सहूलत मिल सके। वेट सैमसन साहब अपना माइक I'm खोलें very प्लीज। sorry, I'm very sorry. हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं Okay. जी। उस ओके इसके बाद अभी मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि अगर एक मुल्क को पकड़ लिया जाए और वहाँ पे सूरत हाल देखी जाए कोरोना वायरस के हवाले से वहाँ क्या चल रहा है और लोग जो हैं वो एक नेशन बन के अपनी इस बीमारी के साथ किस तरह से लड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगी यूके की कि यूके में क्या चल रहा है। 99 साल बुजुर्ग जो इस माह के आखिर में 100 साल के हो जाएंगे, उनका वो माजूर हैं और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं कैप्टन टॉम मोरे। उन्होंने अपने ही घर में अपने बाग में 100 चक्कर पूरे करने का जो चैलेंज है वो लिया है और इसके एवज चैरिटी में जमा होने वाली तमाम रकम जो है, जो कि अभी तक रिकॉर्ड 12 मिलियन पाउंड से तजावज कर चुकी है, एनएचएस के फंड में जमा करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके बाद ये एक ऐसा इकदाम है जिसकी बिना पे ये साबित होता है कि अगर आप बहैसियत कौम अगर अपने मुल्क में आने वाली तकलीफ को महसूस करते हैं तो आप अपने मुल्क की तकलीफ में बराबर के शरीक हो सकते हैं चैरिटी दे के उसकी मसाइल को हल करने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बच्चे जो हैं कौसो कज़ा जो है वो घर घर बनाते हैं और इसकी आपको पता है कि ये खुदावंद की कमान है कि जिसे एक वादा है उसे याद दिलाया जा रहा है कि दुनिया इस वक्त खुदा के कटहरे में है। फिर बोरिस जॉनसन के बारे में बात करूं तो बोरिस जॉनसन वजीर आजम यूके, उन्होंने बीमारी के बावजूद अपने तमाम फ्राइज जो हैं उनको सरअंजाम दिया बखूबी और फिर इस वक्त वो वापस जा चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करती चलूं तो एक वजीर हैं यहाँ पे जिन्होंने यूके में आइसोलेशन का जो अपना मेयरिंग है वो इन्होंने बरकरार ना रखने पे आवाम से सॉरी की। इसके अलावा जुमेरात के रोज यूके में लोग जो हैं वो तालियां बजा के एनएचएस को सल्यूट देते हैं ताकि एनएचएस जो है जो ना सिर्फ एनएचएस बल्कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो अपने इस वक्त हेल्थ के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे इसी तरह से बाकी लोग हैं, उन सब को इस वक्त उनकी खदमात को सराह रहे हैं क्योंकि फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पे ही अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बाद अगर आते चले तो 3000 से ज्यादा जो हैं वो चालान काटे जा चुके हैं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की बिना पे यूके में ही। इस वक्त चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं क्रिस वाइटी, वो कहते हैं कि अमेरिका और यूके में कोरोना वायरस अपने अरूज पर है। फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूं तो उनका कहना है he says he will halt funding to the World Health Organization because of its role in severely mismanaging the spread of coronavirus. 1 मिलियन लोग वॉलंटियर के तौर पे एनएचएस की मदद कर रहे हैं और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि बीमारी डेफिनेटली एक ऐसा वायरस है जो कि नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन इसने पूरी दुनिया को इस वक्त खुदा के कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है। तमाम दुनिया इस वक्त एक ही मुसीबत से जूझ रही है। समझती हूँ कि ये हमें अपने आप का अपनी एहतसाब का वक्त है कि हम अपना एहतसाब करें और सोचें कि बहसियत कौम हम कहाँ खड़े हैं। जी तहमीना राना बहुत शुक्रिया। तहमीना राना जो है वो बहुत मौसर अंदाज से जो वर्ल्ड सिचुएशन है और जो मुख्तलिफ हुक्मरान हैं उनकी जो मेजरमेंट्स है वर्ल्ड में व्हाट इज हैपनिंग वो सारा कुछ हमें बड़ी डिटेल के साथ बता रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। नासिर रजा जो है वो हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदा हैं और सहाफ़ी हैं और
बड़ी नज़र रखते हैं जो हालात व वाक़यात हैं। तो पहले हमने ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में सुना, अभी हम अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो नासिर रज़ा, आप हमें सिचुएशन बताएँ पंजाब और कराची के हवाले से। अ, साउंड नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नासिर रज़ा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी, जी। सबसे पहले तो मैं अपने सारे देखने वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे अपने तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं, जिनमें से एजाज आलम गस्टन साहब, ह्यूमन राइट मिनिस्टर एंड बैन अल मज़ाहिब, उनके सलाम पेश करता हूँ। साइमन जावेद साहब, इमैनुअल साहब आपका, तहमीना राना साहिबा, फैसल और शीर असलम साहिबा। वॉल्यूम थोड़ा कम है आपका। अच्छा, ओवरऑल जी हमारे कराची की और जो सिंध की ओवरऑल जो पोजीशन है कोरोना वायरस के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्वाइट डिफिकल्ट टाइम, और यहाँ पर भी हमारे साथ जो कराची और सिंध की ओवरऑल है, ये तकरीबन हमारे पास 2000 तक पेशेंट हैं, जिसमें से जो है 200 जो डेथ कैजुअलिटीज हैं, और जो रिकवरी का रेशियो है वो 45 पेशेंट्स का है तकरीबन, और तकरीबन 15 से 17 तो जो है अभी आइसोलेशन अस्पतालों में। नासिर रज़ा, आपकी आवाज़ काइंडली थोड़ी सी नहीं आ रही है। हाँ, अपना माइक जो है उसको ज़रा, हाँ जी, जी, पकड़ के। अभी सही है? दोबारा अभी ठीक है, और माइक को इधर ही पकड़ के रखें काइंडली। हाँ जी। ओके। अच्छा जी, हाँ, मैं और जो सिंध की और कराची की सिचुएशन है, इसमें से तकरीबन हमारे 2000 पेशेंट्स हैं जो रिपोर्ट्स हुई हैं अभी तक, और तकरीबन 2000 हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है क्योंकि रोज़ाना ये चेंजिंग हो रही है, और तकरीबन इसमें से 200 लोगों की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और 45 जो लोग हैं उनकी रिकवरी के रिपोर्ट्स हैं, और तकरीबन 15 से 1600 जो लोग हैं वो आइसोलेशन में उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है। नासिर रज़ा, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे पंजाब और कराची की सूरत हाल के बारे में। हमारे साथ शीरी असलम हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस वक्त हमारे साथ अटक से हैं कि वो जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से हमें आगाह करें। शीरी असलम साहिबा। सबको मेरी तरफ से सलाम, और स्पेशली मिनिस्टर साहब को सलाम करती हूँ, और तहमीना काफ़ी अरसे के बाद आई हैं, उनको तहे दिल से मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे अटक के बारे में बताया गया है कि मैं अटक के बारे में बता सकूँ, तो ये जो एक वीक की जो सूरत हाल है मैं उसको यहाँ पे कोप अप करूँगी। यहाँ पे एक कोरोना पेशेंट की डेथ हुई है कल, जो कि हमारी एक तहसील है हजरो, वहाँ गुरगुश्ती एक गांव है जिसमें हुई। उस गुरगुश्ती गांव को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा जब कल इसका जनाजा सुबह 5 बजे हुआ, तो उस जनाजे में जो थे वो एडीसीजी खुद थे, एसी साहिबा थी, और इसके अलावा 1112 और पुलिस के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और वुरसा के सिर्फ 2 लोग थे इसमें शामिल। और इसी तरह न्यू एक बनाया गया फील्ड हॉस्पिटल जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, और इसके साथ साथ करंटीना सेंटर एक बनाया है इसी वीक में, और साथ साथ जो टेवटा कॉलेज है वहाँ पे भी एक क्वारंटीना सेंटर है जहाँ पे 8 लोगों को रखा गया है जिनकी निगहदाश्त चल रही है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका टेस्ट गया हुआ है। 8 लोग हैं जिनके सस्पेक्टेड हैं पेशेंट, लेकिन उनका टेस्ट गया हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसलिए उनको क्वारंटीन किया गया है। और साथ साथ बताती चलूँ कि डेली यहाँ पे जो सिटी एरिया है और जो ज़्यादा रश वाले एरिया थे उनको थोड़ा कम किया गया है, और उन एरिया में डेली स्प्रे किया जाता है जो कि डीसी साहब उसकी खुद निगरानी कर रहे होते हैं, और कोशिश की जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में
बैठें, और वो खुद भी ऐलान कर रहे होते हैं अपनी टीम के साथ, और बाकी जैसे हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग भी किसी ना किसी तरीके से लोगों को कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको कहें कि वो घरों में रहें, महदूद रहें और महफूज रहें। और ये तो अटक और गिरदोनवा की सूरत हाल थी। बाकी ये है, हमारे यहाँ तहसील है, फतेह जंग है, पिंडी खेप है और जंड है, जिसमें अभी सिर्फ सस्पेक्टेड केस है। पिंडी खेप में से जो एक पेशेंट आई थी यहाँ पे, जिसको यहाँ पे रखा गया था सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका भी टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो भी अब घर जा चुकी हैं। तो ये जो सारे सिलसिले हैं, हमारा जहाँ पे मैं रह रही हूँ दारुल इस्लाम कॉलोनी, इसमें मैं स्ट्रीट नंबर 8 में हूँ और यहाँ अगली स्ट्रीट नंबर 9 है। इसमें कुछ सस्पेक्टेड केस थे, इस पूरी गली को किया गया था, उन्होंने मतलब लॉकडाउन कर दिया गया था 1-2 दिन के लिए, पेशेंट को शिफ्ट किया गया उनके जो क्वारंटीना सेंटर है वहाँ पे, और अभी बाकी हालात है जो हमारे एरिया के हैं और तहसीलों के हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और बाकी ये है कि बावजूद गवर्नमेंट कह रही है सबको कि आप अपने घरों में रहें, लेकिन लोग थोड़ा इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैंने देखा बाकी लोग भी यही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हालाँकि मैं मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जबकि उनकी एक कॉल से हमें 60 जो लोगों का राशन यहाँ पे डीसी साहब ने दिया, एक ईस्टर पैकेज दिया। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, और मैं लोग भी इनके बड़े मशकूर हैं। और हम लोगों ने, हमें ये शाम में पैकेज मिला और हमने रातों रात ही इसको हमने लोगों के घरों में पहुँचाया। हमने कोशिश ही नहीं की कि लोगों का हजूम हो और वहाँ पे लोगों की गैदरिंग हो, और हमने उनके घरों में पहुँचाया। और मैं और रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी भी आपके प्लेटफ़ॉर्म जो कि बड़ा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है और ये इनको लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो लोग कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जो है कि खुदा मालिक है, खुदा मालिक है। खुदा तो मालिक है, लेकिन हमारी अक्ल और फ़हम में भी तो है ना कि हमने क्या करना है। इसके अलावा ये कुछ मुझे मेरे जैसे स्पेशल ब्रांच के लोगों ने मुझे बताया कि कुछ चर्चेज़ लगे थे, और पास्टर्स ने, मुझे एक बंदे ने बताया कि पास्टर्स ने उनको कहा था कि आपने कलमे सुनाने हैं और आखिरी खाना है, लोगों को जमा करने की कोशिश की गई। लेकिन मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं था, कोई पिक्टोरियल नहीं था हमारे पास उसके पास। तो इसलिए हमने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, वरना मैं ज़रूर ये मिनिस्टर जी, बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए। फादर मानी। जी, जी। श्री असलम साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप अटक से और अटक की सूरत-ए-हाल के हवाले से बता रही थीं, और ख़ास तौर पे आपने बताया कि किस तरह कुछ लोग जो हैं वो संजीदा नहीं है इस मामले में। और इसके अलावा आपने ये भी बताया कि किस तरह साथ-साथ जो फलाह का काम है वो हो रहा है, और जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं उनकी किस तरह मदद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल इलियास हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदा। फैसल इलियास, बहुत शुक्रिया। आप ऑनलाइन हैं और आप काइंडली हमें लाहौर जो है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, तो इस हवाले से हमें आगाह करें कि ताज़ा तरीन क्या सूरत-ए-हाल है? जी, बहुत शुक्रिया। नहायत ही मोहतरम जनाब एजाज़ आलम अगस्टिन साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, जनाब सैमसन जावेद साहब, फादर इमैनुअल आसमानी साहब, नासिर रज़ा साहब, मोहतरमा तहमीना राना साहिबा, और हमारी कुछ ही देर पहले शीरी असलम साहिबा जो अपडेट्स दे रही थी अटक से। आप सबको शबा खैर। आप फुली आप सब खैरियत से होंगे। फैसल इलियास, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कोशिश करते हैं कि जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में भी थोड़ी आगाही रखी जाए, और उन दोस्तों के साथ उन नेटवर्क्स में शेयर की जाएँ बातें जहाँ पे शायद उस तरह से न्यूज़ या खबर नहीं पहुँचती। वी आर लकी कि हमारे दरमियान मिनिस्टर साहब हैं, और अभी मैं इसको जनरली एक नेशनल लेवल पे जो सिचुएशन है उसको देखते हुए फिर मैं ट्रिकल डाउन लाहौर पे आऊँगा। ओवरऑल जो पाकिस्तान में अभी सिचुएशन है वो 6,825 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं आज तक की डेट के हवाले से अगर देखा जाए। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त पंजाब है जिसमें 3,232 केसेस हैं, और जैसे कि हमें पता है कि आबादी के लिहाज से पंजाब एक बड़ा सूबा है। सेकेंडली सिंध में 2008 के करीब केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। केपीके में 912, बलूचिस्तान में 285,
اور اسلام آباد کیپٹل میں 145 کیسز ہیں، جبکہ گلگت میں ہم دیکھتے ہیں تو 237 کیسز ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں۔ اوور آل جو ڈیتھس ہوئی ہیں پاکستان میں ابھی تک وہ 128 ہیں، اور بحیثیت قوم پاکستانی ہم یہ نہ سوچیں کہ باقی کنٹریز میں تو ڈیتھس کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں کم ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جنرلی تو یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بڑے کم کیسز ہیں، بڑی کم ڈیتھس ہوئی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جس فیملی میں سے ایک شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے لیے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ تو خدا را کم ڈیتھس کو، زیادہ ڈیتھس کو ہم جنرلی یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ بہت کم ڈیتھس ہوئی ہیں، لیکن جس کے گھر میں ایک ڈیتھ ہوتی ہے اس کے لیے تو بڑا ایک افسوسناک ماحول۔ سو یہاں پہ اگر ڈیتھس کو ٹریکل ڈاؤن کر کے ون بائی ون دیکھا جائے پروونس وائز، تو ابھی تک سب سے زیادہ ڈیتھ سندھ میں ہوئی ہیں، انفارچونیٹلی 45 کے قریب لوگ مر گئے ہیں۔ پنجاب میں 34 ہیں، کے پی کے میں 42 ہیں، اور بلوچستان میں تین ڈیتھس ہوئی ہیں، گلگت میں 3 ڈیتھس ہوئی ہیں، اور کیپٹل اسلام آباد میں 1 ڈیتھ ہوئی۔ اب اگر ہم لاہور کی بات کریں، میں یہاں پہ کراچی اور لاہور دونوں کی بات کروں گا کہ کراچی اور لاہور دونوں پاکستان کے ایسے موسٹ پاپولیٹڈ سٹیز ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی اور لاہور میں جو ہماری عوام ہے، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ لوگ ہیں دونوں شہروں میں، لاک ڈاؤن کی جو ایک ایس او پی تھی اس کو فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو کیسز ہیں، کل کی اگر آپ بات دیکھیں تو کل میں 520 کے قریب کیسز رپورٹ ایک دن میں۔ جسٹ امیجن پاکستان میں ایک دن میں 520 کے قریب کیسز رپورٹ ہو، اور ایک دن 24 آورس کے اندر یہ جو اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور 17 ڈیتھس 24 آورس میں رپورٹ ہوئی، جو کہ ایک اچھا خاصا فگر نظر آتا ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے ہماری پاکستان میں، اس کے بعد پھر بڑا شہر کراچی، اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ ہماری گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں منسٹر صاحب، نو ڈاؤٹ ہماری گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کو تھوڑا ریلیکس کیا، تھوڑا لوگوں کو باہر نکلنے دیا، لیکن نو ڈاؤٹ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ڈیلی ویجرز ہیں، فیکٹری ورکرز ہیں، ان کے روز کے کھانے پینے کے بھی کافی ایشوز تھے، جس کی وجہ سے لوگ نکلنا چاہ رہے تھے باہر۔ ہم نے لاک ڈاؤن تو تھوڑا ریلیکس کر دیا، لیکن اس سے دیکھیں نمبر آف کیسز کی جو شرح ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی، ڈیتھس کی شرح کتنی زیادہ بڑھ گئی۔ تو ہم لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی فالو کرتے تو شاید اس طرح سے کیسز ایک دم سے نہ بڑھتے، اور اب اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو آئی تھنک گورنمنٹ کو شاید کو 1 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد کرفیو کی طرف جانا پڑے۔ سو میرا یہ میسج ہے بطور سوشل ایکٹیوسٹ، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ وہ ایریا اسپیشلی کراچی اور لاہور، اس میں تھوڑا سا اسٹرکٹ رکھیں لاک ڈاؤن۔ باقی سٹیز میں اتنی پاپولیشن نہیں ہے یا اتنا زیادہ لوگوں کی انٹریکشن نہیں، جس کی وجہ سے شاید کیسز اس طرح سے نہ بڑھیں۔ تو کائنڈلی لاہور اور کراچی کو اور زیادہ مائنیوٹلی اگر دیکھا جائے تو شاید ہم زیادہ کیسز رپورٹ ہونے سے بچائے جا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، پنجاب جبکہ پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ کٹس کی جو ایک لمٹ ہے وہ ہے 5000، اور ہم نے جنرلی جیسے میڈم تہمینہ نے بتایا، گلوبلی سب سے جو ایک فیزیبل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ آپ نمبر آف کیسز کو یا پیشنٹس کو ٹیسٹ کریں گے اتنا جلدی سے آپ اس میں سے نکلیں گے باہر۔ تو چائنا نے سب سے بڑھ کے یہی کیا، اس کے بعد ہم ساؤتھ کوریا کی اگزامپل دیکھتے ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ کیسز کو آپ ٹیسٹ کریں گے اتنی جلدی آپ اس فیز سے باہر نکلیں۔ تو آئی وش جیسے کہ ہمارے صوبائی منسٹر ہمارے ساتھ ہیں، پنجاب کے اندر پاپولیشن زیادہ ہے، اس کے اندر ٹیسٹنگ کٹس کی جو لمٹ ہے وہ 5000 ہے، اس کو بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے اس فیز سے نکلا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔
फैसल इलियास, बहुत शुक्रिया, आप बड़े वाज़ेह अंदाज़ से जो ख़ास तौर पे पंजाब में सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आपने बताया कि 6,825 केसेज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और आपने बताया कि 3,232 सिर्फ़ पंजाब में है जी। और आपने सारी सूरत-ए-हाल के बारे में आगाह किया और डेथ्स के बारे में भी आपने बताया और जो हमारे दूसरे नुमाइंदगान हैं, उनमें नासिर रज़ा ने भी बताया पंजाब और कराची की सूरत-ए-हाल, श्री असलम अटक के बारे में और फैसल यासब भी आप बता रहे थे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल तहमीना राणा ने वर्ल्ड के बारे में बताया। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है मैं ख़ास तौर पे जो नाज़रीन इस वक़्त हमें जिन्होंने अभी जॉइन किया हमें फ़ेसबुक पे ये नशरियात जो है वो जारी हैं, वो हमें देख रहे हैं कि न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से ये लाइव नशरियात हैं जिसमें हम मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है जो कोरोना वायरस की ना सिर्फ़ वर्ल्ड में बल्कि पाकिस्तान में भी किस सूरत-ए-हाल से हम दो-चार हैं। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अक़लीती सूबाई वज़ीर जनाब एजाज़ आलम ऑगस्टीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़े मुतहर्रिक वज़ीर हैं और बड़ी खुशी है कि हम जब उनको देखते हैं कि किस तरह वो बड़े इस सूरत-ए-हाल में लोगों तक जो मदद है उनकी हर तरह से और गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और वो आज हमें बताएँगे। अ, एजाज़ आलम ऑगस्टीन साहब, हम आपको एक बार फिर खुश-आमदीद कहते हैं आज की इस ट्रांसमिशन में जिसमें लोग हमें लाइव देख थैंक रहे यू। हैं। जी, जी, जी। तो आपने सारी रिपोर्ट सुनी वर्ल्ड की भी व्हाट इज़ हैपनिंग और किस तरह जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में जो हमारे नुमाइंदगान हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे जो फिगर्स हैं वो हमें बताए हैं और कुछ मेजरमेंट भी और कुछ रिज़र्वेशन भी बताई जैसे लॉकडाउन के बारे में फैसल इलियास बता रहे थे कि उसमें कुछ नरमी हुई है लेकिन उसमें जो शरह अमवात है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो काइंडली आप एक तो ये बताएँ कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें गवर्नमेंट जो है उसके क्या मेन इक़दामात हैं लोगों की मदद करने के हवाले से और इसको कंट्रोल करने के हवाले से और जो आपने बज़ाते खुद जो आपने मेजरमेंट ली हैं, जो आप कर रहे हैं उसके हवाले से जो नाज़रीन जो हमें लाइव इस वक़्त देख रहे हैं उनको आगाह करें। जी, एजाज़ आलम ऑगस्टीन साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़ाज़िल साहब आपका और सैमसन जवेद साहब का, कि आप लोगों ने मुझे अपने न्यूकैसल क्रिश्चियन नेटवर्क ऑनलाइन पर बुलाया और मैं बाकी जो शुरका हैं, फैसल इलियास है, उसके बाद शीरी असलम है, मोहतरमा तहमीना राना साहिबा हैं और अ, नासिर रज़ा साहब हैं। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट दी है अपनी-अपनी प्रोविंस से अपने-अपने जगहों पे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखें ये एक वबाई मर्ज़ है। बदकिस्मती ये है कि हमारे जिस तरह दूसरी कौमों ने, दूसरे मुल्कों ने इस पैंडेमिक के खिलाफ बिहेव किया है, उस तरह हमारे लोगों ने नहीं किया। हमारे लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा मेजर नहीं लिए और जब ये स्टार्ट ही हुआ था, जब चाइना में वुहान में ये स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद किसी को ये नहीं पता था कि ये जो वबाई मर्ज़ है, ये पाकिस्तान में भी आ सकती है या ये अ, 216 ममालिक तक ये फैल जाएगी। किसी ने कोई स्टोरी सुनाई, किसी ने कहा जी वो चूँकि ये खाते हैं तो इस वज़ह से हुआ, चूँकि वहाँ पे ऐसे होता है तो इस वज़ह से हुआ। लेकिन देखिए उन्होंने किस तरह अपना एक्सपेरिमेंट लॉकडाउन का किया और उन्होंने इस मौजी मर्ज़ के खिलाफ जो जंग उसको जीत कर दिखाया। तो यहाँ भी असलम साहब अभी कि हमारे लोग उस तरह चीज़ों को ले नहीं रहे और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके नेटवर्क के वसासत से अपने तमाम जो है पंजाब में जो चर्चिज़ के हवाले से, गुरुद्वारा और मंदिर के हवाले से कि हमने जब इनके साथ मीटिंग्स की तो तमाम बिशप साहबान से और तमाम जो चर्च लीडर्स थे, उनके साथ जब मीटिंग्स की तो हालाँकि गवर्नमेंट उनको अ नरम रवैया रखकर इजाज़त देना चाहती थी। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिशप साहबान का और चर्च लीडरान का कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम रज़ाकाराना तौर पर उस वक़्त तक चर्चिज़ को, मंदिर्स को, गुरुद्वारों को बंद रखेंगे जब तक हम इस मर्ज़ के खिलाफ
जंग जीत नहीं जाती। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज था जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से गवर्नमेंट को गया कि हम तमाम, क्योंकि पूरी दुनिया में आपने देखा कि वहाँ पे जब ये वबा आई है तो लोगों ने एक कौम बनकर सोचा है, और यही यही वो स्पिरिट्स होनी चाहिए थी तमाम लोगों में भी। लेकिन बदकिस्मती से आज भी कई लोग जहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, इसको किसी मसले के साथ जोड़ रहे हैं, इसको किसी के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये इंतहाई मैं समझता हूँ एक गलत बात है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की लेवल पर देखें, गवर्नमेंट ने, हमारे पास एक ही मार्केट है चाइना, जहाँ से हम सारे वेंटिलेटर्स और तमाम इसके जो मास्क और दूसरी चीज़ें मंगवाते थे। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो सामान है वो चाइना से गया है। अभी अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका ने जो जो सामान चाइना से जर्मनी जा रहा था, ये कोरोना के बारे में जो मेडिकल किट्स थी या दूसरी चीज़ें, वो जर्मनी के जो ट्रेडर्स था, उसने दरमियान में अमेरिका को बेच दिया, और इज़राइल ने तुर्की से ये सारा सामान लिया है। और हमारे पास एक ही, और उससे जो हिफाज़ती किट्स आ रही हैं, तमाम सूबों को जो है, वो जो पीएमडीसी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, वो जो सामान आ रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि चाइना चूँकि हमारा पुराना दोस्त है और वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वरना आज दुनिया में चाइना के पास इतनी डिमांड्स है अ, इसकी, ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स की और दूसरी चीज़ों की, कि आज भी उसके पास उसकी इंडस्ट्री चल रही है और वो सामान पूरा कर नहीं पा रहे। और फिर मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी कि जब ये पैंडेमिक आने से पहले, ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसके पहले जब हमने ब्रीफिंग ली तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें पता चला कि पंजाब जो 12 करोड़ का सूबा है, उसके पास 600 वेंटिलेटर। तो ये देखें आप, हमारा हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें तो सबसे अहम बात ही वेंटिलेटर्स की थी, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली इफेक्ट ही आपके लंग्स को करती है, और फिर वहाँ पे सबसे अहम जो बात है, उस वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो फैसल इलियास ने बात की कि ये लॉकडाउन में सख्त होना चाहिए या कर्फ्यू जैसी सूरत-ए-हाल का, तो देखें हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट मौजूद है कि इंडिया में जब एकदम वो कर्फ्यू का समा पड़ गया, तो उसके बाद उतनी शिद्दत से लोग सड़कों पे आ गए। वो उससे ज़्यादा मिज़रेबल पोज़ीशंस थी, वो ज़्यादा खतरनाक काम था, क्योंकि हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, हमारी सबसे जो अहम चीज़ है वो भूख है। और हमारे लोगों का माशी इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह का नहीं है कि जिस तरह फ्रांस में उनके घरों तक पैसे भी पहुँचाए गए, फूड भी पहुँचाया गया और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी। इस तरह अमेरिका ने बहुत बड़ा जो अपने कारोबारी लोगों के लिए तकरीबन 22,000 अरब जो डॉलर है, उन्होंने अपने लोगों के लिए जारी की है। लेकिन इवन देन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो सवा अरब का सूबा है, सॉरी सवा अरब का कंट्री है इंडिया, उन्होंने 17,000 अरब जो है वो लोगों के लिए पैकेज दिया। लेकिन पाकिस्तान जो कि 22 करोड़ का सूबा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 12 अरब डॉलर का पैकेज दिया। तो ये उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। फिर जो है एहसास प्रोग्राम में लोगों को 12-12 हज़ार रुपया उनके घरों तक पहुँच रहा है। और उसके बाद फूड हैम्पर की शक्ल में मैं खुद ज़्यादातर हमने अपने लोगों के साथ काम नहीं है। हमने जिस तरह शीरी ने बताया, हमने अटक, पिंडी, उसके बाद जेलम, गुजरांवाला, सियालकोट, उसके बाद उकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर, ननकाना, लाहौर और रहीम यार खान और जहाँ-जहाँ भी, और अभी ये सिलसिला जारी है, हम अपने माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ पे फूड पहुँचा रहे हैं। और ईस्टर से पहले और अभी सेकंड शिफ्ट में मैं अभी भी जब मैं आया हूँ तो हम लाहौर में हमने अभी तक तकरीबन 5,000 खानदानों को पहुँचा चुके हैं। और उसके अलावा हमने यूहन्नाबाद में
2 جو ہے دسترخوان بنائے ہیں جہاں سے لوگ 100-200 کی تعداد میں لوگ ڈیلی جو ہے کھانا کھا رہے ہیں. پھر ہم نے خالق نگر میں بھی کھولا ہے. تو اس طرح دیکھیں ہم اپنے طور پر جتنی گورنمنٹ اور ذاتی طور پر ہر انسان کوشش کر رہے ہیں ہم وہ پوری کر رہے ہیں. آج ہی مجھے ایک بہت بڑے جو فلنتھراپسٹ نے میرے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے 20,000 فیملیوں کے لیے فوڈ ہیمپر دینے کا وعدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی منارٹی کمیونٹی میں ان کو تقسیم کر دیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اس کرونا وائرس میں بھی جب کہ ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں ایس او پیز ہے منسٹرز کے لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے, لیکن فاضل صاحب آپ ہماری ناصر رضا کو پتہ ہے, شیری کو پتہ ہے, فیصل کو بھی پتہ ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری موومنٹ رکی ہی نہیں ہے. ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں, ہم بستی بستی جا رہے ہیں. ہماری دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کی سب سے بڑی یہ آفت ہے اور اس میں ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ رہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور خدا کرے کیونکہ یہ وبا جتنی بھی بڑی ہے لیکن میرا خدا ان سب وباؤں سے بڑا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں سرخرو ہوں. جی جی اجاز عالم صاحب آپ بہت شکریہ, آپ بڑے واضح طریقے سے بتا رہے ہیں. آپ ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں چاہوں گا کہ سیمسن جاوید جو ہے ڈائریکٹر ہیں ہمارے نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے, وہ کوئی منسٹر صاحب سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں. تہمینہ رانا آپ بھی اور جو ہمارے دوسرے نمائندگان ہیں, کیونکہ آپ وہاں پہ آپ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. سو اف یو ہیو اینی کویسچن اجاز اگسٹین عالم صاحب سے, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو ناؤ. سیمسن صاحب ذرا مائک کھولیں اپنا پلیز. ہاں جی اجاز صاحب ترکی سے کچھ ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو شیخو پورہ, گوجروالا, لاہور کے قریب انہوں نے جو ہے خواتین کے لیے اسکول کھولے, سلائی اسکول کھولے. تو جی اجاز صاحب آپ کو آواز صاحب اپنا مائک کھولیں. ٹھیک ہے ابھی میں اجاز صاحب کے گوش گزار کر رہا تھا کہ ترکی سے کچھ ہمارے دوست ہیں, دبئی سے دوست ہیں جنہوں نے وہاں پہ شیخو پورہ, گوجروالا, پھر لاہور کے قریب سلائی اسکول کھولے خواتین کے لیے, اس حوالے سے کہ یہ خواتین جو ہے کام کرنے کے, لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی بجائے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اس معاملات میں. تو وہاں سے ہمیں رپورٹ اس طرح ملی ہے, انہوں نے جو ڈائریکٹر ہیں اس پروگرام کے, اس نے مجھے بتایا کہ ابھی تک شیخو پورہ کے نزدیک جو کچھ گاؤں ہیں, پھر گوجروالا جو فرانسس آباد ہے اس سے باہر علاقہ میں, اب اور پھر لاہور کے باہر آپ چیچا وطنی کے درمیان میں علاقے میں ابھی تک جو ہے ان کے راشن کی کمپلینز آ رہی ہیں. میں یہی جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کانٹیکٹ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو کافی ساری فیڈ بیک بھی ہوتی ہے. جی سیمسن صاحب ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں ہم جو کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ شیخو پورہ میں ہم نے 200 میرے خیال میں جو کرسچنز کمیونٹی کے خاندان ہوں گے وہ 20,000 سے زیادہ ہوں گے میرے خیال میں. تو ظاہری بات ہے ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کی آبادی کرسچنز کی بڑی ہے, تو یہ تو سمجھ لیں کہ یہ اٹس اے پینٹ. ٹھیک ہے, ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے, ہمارے وسائل اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکیں. ہمارے پاس جو چیز ہمارے پاس جو وسائل آتے ہیں ہم اس کو بروئی کار لاتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم قطعاً نہیں یہ کہہ رہے کہ ہم ہر چیز کو, اب ہم نے لاہور میں ایک ہم نے میڈیا پہ وہ وہاں پہ ایڈریس لیتے ہیں تو اس لوگوں کے گھر تک پہنچانے کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے. یہ گورنر ہاؤس کی طرف سے ایک ہے کہ وہ ایک اشتہار آ رہا ہے, اس میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے, اپنا نام لکھنا ہے اور آپ کو گھر جو ہے وہ پہنچے گا. تو یہ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, لیکن میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت چونکہ پاکستان غریب ممالک میں سے پاکستان کا تعلق ہے,
اور اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کی مدد کر پا رہے ہیں جس طریقے سے لوگ جہاں پہ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ ہر کسی کو وہ اس طرح سے راشن نہیں پہنچتا۔ جی جی تہمینہ رانا، میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا اس گفتگو میں۔ جیسے آپ نے رپورٹنگ بھی کی بڑے اچھے اور واضح انداز سے، ورلڈ کی آپ نے بھی میجرز دیکھے اور آپ نے حوالہ بھی دیا جو مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ کس طرح کوشش کر رہے ہیں اور اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک طرف ورلڈ ہے اور ایک طرف ہم پاکستان ہے، جیسے منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز یا وہ نظام نہیں ہے جیسے کہ دوسرے ممالک میں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک طرف ورلڈ کی سچویشن ہے، دوسری طرف پاکستان کی صورتحال ہے، ایک طرف جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے بتایا۔ تو اس حوالے سے آپ کو اگر کویسچن کرنا چاہتی ہیں منسٹر صاحب سے تو یو آر موسٹ ویلکم۔ میں پہلے تو آپ تمام شرکا کی شکر گزار ہوں، اعجاز عالم صاحب، فیصل صاحب، اس کے علاوہ شیریں اور سمسن جاوید صاحب اور فادر جی، آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا بڑا بہترین چل رہا ہے۔ ایسے میں چونکہ پاکستان کی بھی صورتحال سے واقف ہوں اور دنیا بھر کی صورتحال سے بھی واقف ہوں کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بات کا سلسلہ بڑھاؤں، میں آپ کو ایک مشکل ہوئی گورنمنٹ پاکستان کو بنے 70 سال ہو چکے ہیں، یہ اس بات سے انکار نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں جو ہے وہ یو کے گورنمنٹ کی طرف سے یو کے وزیر اعظم نے لکھا ہے اس وقت جب کہ وہ خود کرونا وائرس کا شکار ہو چکے تھے۔ کس کے لیے لکھا گیا؟ اپنی عوام کے لیے لکھا گیا تاکہ وہ سیف اور سیکیور رہیں، اور ایسی صورتحال میں گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ گھر پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا یہ جو خط ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گی، یہ گھر گھر موجود ہے یہاں، یعنی لوگوں کو یہ لیٹر جو ہے وہ دیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ Stuck at home and need shopping, need a prescription or post, need a friendly call or something else a local volunteer could help with. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک نمبر جو ہے، یہ تمام چیزیں صرف آپ کے ریکارڈ کے لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے دنیا بھر میں لوگ جو ہیں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک پمفلٹ ہے جس کا مقصد ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں کرونا وائرس اسٹے ایٹ ہوم پروٹیکٹ دی این ایچ ایس سیو لائف، یعنی انہوں نے اپنے جو ان کا این ایچ ایس ہے اس ڈپارٹمنٹ کو سیف رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا، اوور آل اگر ہم بات کریں تو اس وقت پہ کسی بھی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرنا نہیں بنتا۔ اس وقت عوام کو اپنی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے خود میدان میں اترنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں، حفاظتی اقدامات بتائے گئے ہیں، مانتی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے تحت ہمیں اس وقت اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، کیونکہ اگر دنیا بھر میں امریکہ، یو کے جیسے بڑے جو ملک ہیں، اٹلی، اسپین، چائنا جیسے بڑے ممالک میں اتنی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ ابھی تک نان سیریس اگر ہم رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر یہ غلط فہمی ہے۔ اگر وزیر اعظم نے، میں سپورٹ کروں گی اس وقت کہ اگر وزیر اعظم نے، پاکستان وزیر اعظم نے اگر اتنی امداد کا اعلان کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اگر وہ الیکشن کے وقت اتنا پیسہ اپنے الیکشن کو جیتنے کے لیے لگا سکتے ہیں، تو اس وقت صورتحال ان کے لیے بڑی کٹھور ہے، خطرناک بھی ہے، کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ آئیں تو یہ وقت ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ووٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ خدمت۔ اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو اس وقت آپ کا میدان میں آنا اور لوگوں کی جو ہے فلاح کے لیے بلا تفرقہ، بلا مذہب، آپ بلا رنگ و نسل کسی ڈسکریمنیشن کو پرے کرتے ہوئے آپ صرف اس وقت سوچئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا اس وقت آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ پوری دنیا اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہے۔ لوگوں کو دیکھیں تو وہ سڑکوں پہ سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں، اس کے بعد پھر میں اس بات کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ میں نے کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھی جس میں لکھا تھا کہ پولیس نے ایک موٹر سائیکل سوار جوڑے کو روکا، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں اپنے بچیاں نوں وہاں چلنا وا، لاک ڈاؤن ہوندا کی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال رہی
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر پوری دنیا تباہی کی لپیٹ میں ہے تو خدا سے معافی کے سوا اس وقت اپنی حفاظت خود کے تحت اور اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ بحیثیت قوم کہاں کھڑی ہیں, دنیا بھر کی قومیں کہاں کھڑی ہیں. یہ رول ماڈل کے طور پہ میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ سوچنے کی ضرورت ہے. صرف میں اور آپ یا کچھ لوگ نہ سوچیں, بلکہ اس وقت مجموعی طور پہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا سب کا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کو ضرورت ہے کہ خود کو بچائیں تاکہ دوسروں کو بچایا جا سکے. جی تہمینہ رانا صاحب بہت شکریہ. منیسٹر صاحب سے آپ کا کوئی کویسچن ہے ڈائریکٹ اس حوالے سے جو آپ نے اوور آل بتایا؟ بڑی اچھی بات ہے. میں اجاز صاحب سے یہ بے حد شکریہ. میں اجاز صاحب سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی, اجاز صاحب کیا آپ یہ جو جتنے بھی منسٹر حضرات ہیں انہوں نے, یہ جو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے, انہوں نے ابھی تک عوام کے لیے کیا اقدامات لیے ہیں؟ انہوں نے عوام اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کا کچھ سوچا ہے؟ جو ایم این ایز ایم پی ایس ہیں یہ اپنے لیول پہ کچھ کر رہے ہیں, اپنے حلقے میں لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں؟ میرے پاس ایم پی اے ایم این اے کا تو ڈیٹا نہیں ہے, لیکن میں نے مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ میرے پاکستان کے لوگ جو ہے جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے اس بارے میں بڑی, جس کے بارے میں نے بات کی ابھی آج میری چیمبر آف کامرس میں ایک جو انتہائی معتبر شخص ہے, وہ نام بھی نہیں بتانا چاہتے, تو انہوں نے لوگوں کو 1 لاکھ لوگوں کو فوڈ ہیمپر دینے کا وعدہ کیا. آپ اس پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ پھر دیکھیں جو پرائم منسٹرز کا جو کرونا ریلیف فنڈ ہے اس میں سے بہت سارے لوگوں نے لی. لیکن آپ کی بات یہ درست ہے کہ ہم جب الیکشن لڑتے ہیں, ہم جب بلدیاتی الیکشن ہو تو ہم جناب دیکھیں پکا پکا کے پاگل ہو جاتے ہیں اور لوگ بریانیاں باہر کھا کر. تو آج بالکل آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں گا کہ آج وقت ہے ان لوگوں کے لیے, جب کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو کیسے پہنچائیں. دیکھیں جب آپ الیکشن کی پرچیاں لوگوں کو گھر گھر پہنچا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو آئی ڈی کارڈ لوگوں کے گھر گھر سے دے سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہی موقع ہے. اور یہ جو آپ والی بات اگر سب سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہیں ہمیں کسی فورن ایڈ کی ضرورت نہیں ہے, کہیں دوسرے کی ضرورت نہیں, ہمارے لوگ ہی اپنا بوجھ خود اٹھا لیں. جی کرتا بہت جاؤں شکریہ. فادر جی, میں بات کرنا چاہ رہا تھا کچھ پلیز. ایگزامپل کے طور پر کہ اس وقت جو صوبہ سندھ میں چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مراد علی شاہ ہیں اس وقت انہوں نے زبردست قسم کا وہاں سسٹم جو ہے وہ مینج کیا ہے, اور کچھ اس طرح بھی واقعات آئے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ لاسانیت میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو اگزامپل تھی وہ اس طرح بھی آئی کہ جب 3 دن پہلے گورنر جو ہیں وہ راشن دے رہے تھے, انہوں نے بڑی تقریر کی کہ یہ احساس پروگرام کے جو ہے کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے. تو جب میڈیا نے ان عورتوں کو پوچھا کہ یہ کہاں, تو انہوں نے کہا جی یہ تو بے نظیر جو ہے وہاں سے کیا جا رہا ہے. تو گو کہ صوبہ سندھ آبادی سے پنجاب کی آبادی سے کم ہے, اتنی وہاں پہ اگر پنجاب میں آبادی ہے تو وہاں میں ایم پی اے بھی زیادہ ہیں, ایم این اے بھی زیادہ ہیں. کیا پنجاب بھی اسی طرح جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن وزیر اعلیٰ اسی طرح مراد علی شاہ کی طرح کوشاں ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو گو کہ میں یہ کہتا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو خود بھی سامنے آنا چاہیے. لوگ کر رہے ہیں, محلہ وائز کر رہے ہیں, راشن اکموڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ وہی میرا سوال آئے گا کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اسی طرح کوشاں ہیں جس طرح مراد علی شاہ کوشاں ہے؟ جی ہم منسٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس کا آنسر. جی عالم صاحب ذرا اپنا مائک کھولیے پلیز. ایک منٹ جی, کھلا ہوا ہے مائک جی. جی ابھی کھولو. جی یہ سب سے پہلے تو میں سیمسن صاحب کی تھوڑی سی معلومات میں, سیمسن صاحب نے شاید 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ کی جو
हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पंजाब के इकदामात को बेहतर करार दिया है, जबकि उन्होंने कहा है कि सिंध में कोई काम नहीं हो रहा है इसके हवाले से। तो ये शायद सैमसन साहब ने सुना नहीं है। तो इकदामात की जहाँ तक बात है, सारे सूबे जो हैं, और इसी वजह से कल जो कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई है उसमें तमाम सूबों ने 98% जो है वो कंसेंसस के साथ चीजों को तय किया है। तो बात ये नहीं है कौन सा सूबा कर रहा है, कोई देखें सैमसन साहब, आपने जो जो ये गुलदस्ता सजाया है ना, आपकी बेहतरीन कोशिश ये होगी कि सब अच्छी बात करें और ये इसका नेटवर्क सही रही और ये चीजें आगे लोगों तक जाए। आप कभी भी नहीं चाहेंगे ये प्रोग्राम दरमियान में खराब हो। ना ये ना ना चारों ये जी पांचों सूबे हमारे हैं, हमारा जी पाकिस्तान है, कम ये नहीं, कोई भी नहीं ये चाहता कि सिंध में बेहतर निज़ाम हो तो पंजाब में ना हो, पंजाब में बेहतर हो तो केपी में ना हो, केपी में बेहतर हो तो बलूचिस्तान में, सब में। लेकिन मैं थोड़ी-सी अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं थोड़ी-सी बात कर लूँ। हमारे जो क्रिश्चियन स्पेशली ओवरसीज़ के लोग हैं, ठीक है? वो वहाँ से मदद करने के बजाय वहाँ बैठ के सिर्फ़ तनकीद कर रहे होते हैं, कि फलाँ क्या कर रहे हैं। माजरत के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी माजरत करता हूँ। असल में 2 दिन पहले हमारे साथ एंथनी नवीद साहब थे, सब जानते हैं। जहाँ तक हम ओवरसीज में हैं, हमेशा हम पाकिस्तान के वफादार रहे हैं और कोशिश की है कि हम बेहतर कभी तनकीद ना करें। हमारे नहीं, नहीं, इस वक्त तनकी मैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कुछ लोगों की मैंने वहाँ से पोस्टें पढ़ी हैं कि फलाँ किधर गायब है, फलाँ किधर गायब है। जी तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये वक़्त नहीं है कि जी फलाँ किधर गायब, जिस तरह जो हमारी मोहतरमा तहमीना राना साहब ने बताया कि ये वक़्त नहीं है कि इस वक़्त किसी से पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सवाल अपने आप से कि आप क्या कर रहे हैं? हम्म, तो एंथनी साहब बिल्कुल एंथनी साहब का तल्लक चूँकि सूबा सिंध से है, मैं देखिए मैं पंजाब से हूँ, मैं यहाँ का पंजाब का मिनिस्टर हूँ। हम्म, मैंने हमेशा वही बात करनी है कि पंजाब ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, नहीं, जी, मैं ऐसे बात नहीं कर जी, रहा। मैं जी, ये कह रहा हूँ कि तमाम सूबे अपनी हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट लेकर आएँ ताकि कोरोना का हर सूबे में जो है वो जो पेशेंट्स है उनकी रफ्तार जो है वो कम हो। चूँकि मैं तो समझता हूँ कि हमें किसी कोई ये तो अल्लाह ताला का हम पे खुदा का करम है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़रा स्ट्रॉन्ग है कि हम जिस तरह अमेरिका में हुआ, जिस तरह इटली में, जिस तरह स्पेन में, उस तरह से हमारी वो हलाकतें नहीं हुई, उस तरह इसकी स्प्रेडिंग नहीं हुई। तो हम इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि अभी उस तरीके से हम उस डेंजर ज़ोन में नहीं गए। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जिस तरह का अभी लोगों को और फिर मैं ये जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं इसमें एक ज़रा थोड़ी-सी रिपोर्ट्स में ख़ामी रह गई है कि इसमें ये चीज़ें नहीं बताई गई जो कि जिसके स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि सेहतयाब कितने अभी कल ही पंजाब में लाहौर से 66 जो है जी, लोग सेहतयाब होकर घरों को गए हैं। एहतियात। डीजी खान का जो क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है, उसमें 250 लोग जो हैं वो घरों को जा चुके हैं और तबलीगी जमात के जो लोग थे वो भी तकरीबन 450 के करीब सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है, लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं, ना कि सिर्फ हलाक ही नहीं हो रहे। अ, जी नाज इजाज़त नाज नासिर रज़ा साहब की तरफ चलते जी, हैं। जी, जी। फादर जी माज़रत के जी, साथ। जी। जी, जी। नासिर रज़ा साहब आप मज़ीद कोई पूछना चाहते हैं जाज़ आलम साहब से जो आपने सूरत-ए-हाल वहाँ की बताई उसके हवाले से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर राशन आपकी आवाज़ कम आ रही है, काइंडली ज़रा माइक को थोड़ा से बेहतर करें। हाँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो पेशेंट को इजाज़त देते हैं और जाज़ आलम साहब ने और तहमीना राना साहब ने बहुत अच्छी बात बात बिल्कुल आवाज़ बेहतर करें ज़रा थोड़ा-सा इसको। जी। नाउ इज़ ओके, नाउ इज़ क्लियर। नहीं, नो। बहुत शोर है आप इसको निकाल ही दें। हेडफ़ोन को अभी निकाल देना। अभी ठीक है? जी। अभी ठीक है। ओके। अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। सॉरी ये इंटरप्शन हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात की है बिल्कुल तहमीना राना साहब और एजाज़ आलम साहब सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें एक-दूसरे को
तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और खुश आइन बात है और ऐसा होना चाहिए। इस टाइम पे हम सब एक दूसरे के लिए हम जो भी अपना बीज चाहता है वो बोए, ठीक है, ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। सूरत हाल कराची की ये है, सुबह सिंध को तो छोड़ दें और मेरे पास तो ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरे पास फिगर्स आए हुए हैं। जीबी 100 से 200 खानदान थे, वो बेचारे बिल्कुल मजदूरी करने वाले लोग थे तकरीबन। तो ओवरसीज के लिए मैं इजाज भाई को बताऊंगा कि बड़े अच्छे कुछ लोग थे, उन्होंने अगर 250 लोगों का नहीं किया, 200 से 250 लोगों का नहीं किया, तो कम से कम उन्होंने मुझे तो आवाज नहीं आ रही रजा साहब की। नासर रजा काइंडली जरा माइक आपका बहुत खराब कर रहा है, आवाज नहीं पहुंच रही। हेडफोन जो है ना, हेडफोन आप निकाल दो तो बेहतर है, मेरा ख्याल है आवाज ज्यादा बेहतर आएगी उससे। मुझे आवाज नहीं आएगी, आप भी जरा बात करें। हाँ जी जी सर अब बेहतर है? नहीं नहीं नहीं, बहुत कम आवाज है, आवाज कम आ रही है। एनीहो नासिर रजा आप माइक अपना जो है थोड़ा सा बेहतर करें और उतनी देर में हम फैसल इलियास की तरफ बढ़ते हैं। फैसल इलियास, आप बता रहे थे लाहौर के बारे में खास तौर पे, और जाज आलम साहब भी उन्होंने सूरत बताई, तो आप काइंडली क्वेश्चन करें। जी बिल्कुल, क्वेश्चंस तो उस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो नेशनल टेलीविजन हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवाल और जवाबात भी मिलते रहते हैं, अपडेट्स भी हैं। यहाँ पे एजाज साहब ने ये बात की कि कितने ओवरऑल कितने सेहतयाब हो चुके हैं ना, तो पाकिस्तान में जो अभी तक जितने पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे और 1645 के करीब अभी तक जो लोग हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और 128 डेथ्स हो चुकी हैं। तो हमारा अगर रिकवरी के हवाले से देखा जाए तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमने बड़े अच्छे से रिकवर भी किया है। और इसमें इम्यून सिस्टम, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एक जो बहुत ही छोटे होते हुए बचपन में इंजेक्शन लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडीज के अंदर इम्यूनिटी है। सो ये इन सारी रियलिटीज के साथ साथ अगर हम ये देखें कि हमें इस मुश्किल टाइम में पर्सनालिटीज को हिट नहीं करना, बल्कि जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, जो गवर्नेंस के फ्लॉज हैं, हमने उनको देखना है, मिल के ठीक करना। और यहाँ मैं एजाज साहब की बिल्कुल बात को बढ़ाऊंगा कि हमने बजाय के क्रिटिक्स बन जाएं, यहाँ पे हमें बहैसियत कौम मिल के सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। यहाँ मैं शेयर करता जाऊँ, बीइंग सोशल एक्टिविस्ट, रिसेंटली हमने कुछ लोकल फंड रेजिंग के साथ कुछ फैमिलीज को सपोर्ट किया है, उनके डोर स्टेप पे राशन के बैग्स दिए हैं और फेस मास्क दिए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं बहैसियत कौम, हम इससे फाइट करें। जैसे हमारी अफवाज पाकिस्तान पीछे नहीं है, हमारी गवर्नमेंट सारी, सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट मिल के इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है। एंड इट्स गुड कि हम जॉइंट पावर के साथ इसको फाइट करें। जैसे हम मीडिया पे देखते हैं कि हमने कोरोना से डरना नहीं है बल्कि मिल के लड़ना है। सो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। लेकिन एजाज साहब, अगर कोई बात ऐसी होती है तो मेरा ये मानना है कि हम गवर्नेंस की बात करें, हम टेक्निकल फ्लॉज की बात करें। जैसे हमने बात की कि गवर्नमेंट ने 12 अरब रुपए के जो एहसास प्रोग्राम है उसके जरिए से लोगों को, हर फैमिली को 12,000 रुपये दिए, और इसी तरह राशन के पैक्स भी दिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी स्ट्रेटजी ये थी, हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये थी कि हम लॉकडाउन करेंगे और उसमें लोग अपने अपने घरों में स्टे करेंगे, और जो साहब इस्तात हैं वो तो 15 दिन, 20 दिन, 1 माह का लॉकडाउन बर्दाश्त कर लें। लेकिन जो डेली वेजर्स हैं, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होगा कि वो डेली जो कमाते हैं वही उनके घर में चूल्हा जलता है। तो हम उनको हेल्प आउट करने के लिए हम उनको 12,000 रुपये देंगे और एट वंस दे देंगे, ताकि उनके 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 माह का जो गुजारा है वो हो जाए। और उसके साथ साथ हम राशन के पैकेट्स भी देंगे। आपने खुद कहा कि अभी बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जिसमें नो डाउट कोई भी गवर्नमेंट या किसी की भी ज़ात परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो सिर्फ खुदा की ज़ात है। हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज में अभी राशन देना रह गया है, या बहुत सारे लोगों को जो डिजर्विंग है उनको 12,000 अभी नहीं मिले। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमने लॉकडाउन किया था 15 दिन का, 20 दिन का, तो उन डेज को
लाइक उन डेज में घर पे रहने के लिए हमें फिर उन लोगों को थोड़ा अर्ली 12,000 रुपये दे देना चाहिए था ताकि वो घर पे रहे, या 12,000 अगर हम नहीं देते तो 15-20 दिन का राशन पहले से दे देते ताकि वो लोग बिल्कुल बाहर ना निकलते। अब भगदड़ ये मची है या सिचुएशन खराब तब हुई है जब थोड़ा सा लेट हुआ। अब लेट क्या है, जैसे हमने लॉकडाउन कर दिया 15 दिन पहले कि सब घर पे रहे, और हमारे जो पैकेट्स हैं अभी भी बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे जगहों पे एहसास प्रोग्राम के जरिए से 12,000 नहीं पहुंचे। तो वो फैमिलीज फ्रस्ट्रेट होने के बाद, डिसअपॉइंट होने के बाद डेफिनेटली वो बाहर आए और केसेस ज्यादा बढ़ना शुरू हुए। सो बात ये नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब काम ठीक नहीं कर रहे हैं या फला मिनिस्टर काम ठीक नहीं कर रहे, हम सिर्फ गवर्नेंस की बात करें कि हाउ स्ट्रेटजीज वर्क, तो इस पे है। अदरवाइज आप हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, आपसे मुलाकात रहती है अक्सर प्रोग्राम्स में। सो आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली बीइंग पाकिस्तानी नेशनल सिटीजन्स हम आपके साथ हैं, और जैसे मैंने बताया कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से भी, पीस ऑफ पाकिस्तान से भी हमने कुछ फैमिलीज को सपोर्ट किया है और हम गवर्नमेंट की सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन जब बात आती है कि हम मिलके किसी काम को करें, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है या मुझसे कोई कोताही हो गई है तो डेफिनेटली आपका बनता है कि आप मुझे बताएं कि आप ऐसे करें। अगर इसी तरह नासिर रज़ा साहब से कोई मिस्टेक हो रही है या कहीं पे उनसे कुछ रह गया है तो हम मिलके उसको करेंगे। तो डेफिनेटली बहैसियत कौम हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है तो हम सब ने मिलके उसका मुकाबला किया है। और आप ही की बात को बढ़ाऊंगा कि हमने यहाँ पे सूबाई जंग नहीं लड़नी, हमने डिवाइड नहीं होना बल्कि यूनाइट होना। तो बहैसियत कौम नेशनल लेवल पे ये हमारा नेशनल इशू है, और हमने ये हमारा कोई प्रोविंशियल इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है, नेशनल इशू है। तो डेफिनेटली हमने इसको मिल के कैटर करना है। सो थैंक यू वेरी मच। फैसल इलियास साहब और अपना मोहतरम एजाज आलम साहब, ये जो एग्जांपल दी जाती है ना कि फलां सूबा, ये असल में ये बात नहीं है कि कोई क्रिटिसाइज करने का खुदा नखास्ता ये नहीं होता। ये होता है जी असल में एक हमने किया इसमें एक कंपटीशन। जब आप सेहतमंद कंपटीशन लेते हो तो काम का बेहतरी की तरफ जाती है। मैं नहीं समझता कि क्रिटिसाइज हम पंजाब को कैसे क्यों क्रिटिसाइज करें या किसी सूबे को। इस वक्त हमारे पास एक लोग हैं, इंसानी हकूक है, इंसानी जानें हैं, ये सबसे पहले हमारा काम है। यहाँ पे ना अपोजिशन ना बरसरे इक़्तिदार, हमें ना क्रिटिसाइज करना है, हमें अवाम का हम जिंदा होंगे तो काम चलेगा। ये है। एक और मैं ओवरसीज को भी पैगाम यहाँ देता जाऊं क्योंकि वक्त भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो खुदारा ओवरसीज में जितने रहने वाले लोग हैं वो सूरत हाल को उनको समझना चाहिए कि वहाँ क्या कर रहा है कोई अवाम है। इतनी अवाम ज्यादा होने के बावजूद आप दूसरी तरफ अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास वसाइल कितने हैं। हमारी गवर्नमेंट या हमारी हुकूमतें तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हुई। तो अगर आप करते हो क्रिटिसाइज, आप देखो क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वैसे भी इस वक्त क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना बनता नहीं। आगे चले, ये मत सोचें कि जी अगर सैमसन आता है तो वो क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करता। मुझे बहुत फेस करना पड़ता है कि भाई आप क्यों नहीं करते। अब ये भी नहीं है कि मेरे ताल्लुकात खुदा न खास्ता एजाज साहब से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, ये भी नहीं है। हमें काम करना है, क्रिटिसाइज जहाँ जरूरत होती है वहां करना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त हमें क्रिटिसाइज नहीं, इस वक्त हमें आगे बढ़ाना है। तो फादर मानी साहब आपकी मैं जी जी मैं सरपंच साहब जी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुज़ारिश ये है कि देखिए आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम तनकीद से कतई नहीं घबराते, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ तनकीद से जो है तमीरी चीज़ें भी निकलती हैं, और मैं तो उन लोगों का भी शुक्रगुज़ार रहता हूँ कि जो हम पर तनकीद करते हैं, और हम कोई बेहतरी उसमें से निकाल लेते हैं कि उसमें हो सकता है कोई बेहतर चीज़ ही निकल आए।
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے یہ بات کی، ہم نے سب نے ایک نقطے پر بات کی کہ یہاں پہ ہمیں سیاست نے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ہم نے سوچا ہے کہ یہ کورونا وائرس کا جو مرض آیا ہے یہ بیانڈ دا پارٹی ہے، یہ کسی مذہب کا نہیں، کسی پارٹی کا نہیں، یہ سب کو ہو سکتا ہے. تو لیکن کئی دفعہ لوگ ہمارے ساتھ سیاست کر جاتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ لوگ ہمیں فون کریں گے کہ جی وہ پہلے ہم فلاں پارٹی میں تھے، ٹھیک ہے، تو اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں نے تو دیکھیں ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ جب تک یہ کرونا کی مرض ہے اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتی ہم نے کسی سے یہ سوال کرنا ہی نہیں کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے یا کس سے نہیں. لیکن لوگ چونکہ ہم سے زیادہ سیاستدان ہو چکے ہیں تو وہ ہمیں چکر دینے کے چکروں میں رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جاز عالم صاحب بڑا اچھا تھا آپ نے جب آپ نے سٹارٹنگ میں ہی آپ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں ہر طرح کی سیاست سے بالا تر ہو کے کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ ہے جو آپ نے بیان کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیمسن جاوید بھی جب وہ بتا رہے تھوڑا سا چلے انہوں نے کمپیریزن کیا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اوور آل کون کس طرح کر رہا ہے کیونکہ لازمی طور پہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جو مختلف صوبے ہیں وہ کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. تو ہمیں مجموعی طور پر کٹھے مل کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. سیمسن جاوید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اعجاز صاحب 10 منٹ ہمارے پاس ہیں تو پلیز آپ ہمارے ساتھ 10 منٹ اور گزار لیجیے گا، پھر ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے. آپ لوگوں کی آواز کم ہو گئی ہے. آواز کیوں کم ہوئی؟ مجھے آ رہی ہے آواز کافی زیادہ. اعجاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی کافی زیادہ؟ آ رہی ہے، تھوڑی آ رہی ہے، پہلے جتنی نہیں آ رہی. نہیں وہ آپ کا جو ہے نا آپ کی آواز وہاں سے کم ہوئی ہوگی تو آپ آواز ایسا ہے کہ 10 منٹ ہم اور ہیں ہمارے پاس تو آپ 10 منٹ ہمارے پاس کائنڈلی ساتھ رہیں. آپ ساتھ رہیں. تو ناصر آپ کے سسٹم میں کچھ خرابی تھی، آپ بھی شامل تھے جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ، لیکن یہاں پہ اس گفتگو کا نہیں. آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیے. ایک اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں گا، اصل میں شیری جو ہے وہ ان کے کچھ نیٹ میں پرابلم تھا، مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ دیکھ لیں جو بے نظیر سپورٹ انکم تھی اس میں ایسا ڈیٹا کھل کے سامنے نہیں آ سکا تھا. تو وہاں پہ بہت سارے کرسچن جو اس وقت نہیں تھے ان کا نام نہیں ہے اس میں. تو آپ وہاں بھی کچھ پلیز دیکھیے گا کہ کیا کچھ ایسا. اس میں سیمسن صاحب اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو اصل سچویشن. جی جی میں ابھی شدارہ سے آیا ہوں سیمسن صاحب. جی جی جی. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ کتنے لوگوں کے پاس آپ کے آئی ڈی کارڈ ہے. تو اس پورے مجمع میں سے 50% سے کم ہوں گے. ہمارے لوگ شناختی کارڈ بہت کم بنواتے ہیں اور یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کے کسی پلان میں پوری طرح جو ہے کوالیفائی نہیں کرتے. جی ناصر صاحب جی سر. جی جی سر آگے بڑھیے گا ذرا تھوڑا. جی جی ناصر آپ وہ کویشچن کرنا چاہ رہے تھے وزیر صاحب سے. ٹھیک. جی وہ میں بات کر رہا تھا اعجاز عالم صاحب سے، اور وہ تھوڑی سی بات ہو جائے گی پھر وہ لمبی ہو جائے گی. تو اعجاز عالم بھائی ہمارے پاس کچھ فیگرز ہیں، یہ کوئی مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. یہاں لاہور کا کوئی جڑا والا ہے GB 100 فیصل آباد کا ایک ایریا تھا، وہاں پہ 200 سے 250 لوگ تھے. اور یمنا آباد کے بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں، وہ میں آپ کو لسٹ یا کچھ ایسا وہ بھیج دیتا ہوں. اور سیکنڈلی یہ آپ لوگوں کو میں ابھی وہ اوورسیز پاکستانیوں سے میرے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے کرسچنس کمیونٹی کے لیے کچھ کوئی فنڈ ایسی جگہ پہ جیسے منسٹر صاحب ہیں، اعجاز عالم صاحب ہیں، یا کوئی ایسا مطلب کہ ادارہ یا کوئی ایسے لوگوں کو بھیجیں جو بالکل مطلب شفاف طریقے سے
क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को पहुंचा सके। कराची में भी सिंध में भी राशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो बेचारी बीमार हैं और वो बेचारी बेयारो मददगार पड़ी हुई है, वो हमें कॉल कर कर के कह रही है। मैं काफ़ी डिफरेंट NGOs को, लेकिन हमारे जितने, मैंने कल एक बात की थी कि हमारे अगर बड़ी माजरत के साथ टीवी चैनल वाले जो हमारे गोस्पल टीवी मसीही मजहबी टीवी चैनल वाले हैं, अगर ये लोग अपने स्क्रीन पर इस दफ़ा ये ऐड लगा दें कि जी जिसको भी राशन चाहिए हमारे पास से मिलेगा, कोई ऐसे वो ज़राए कर लें, तो जिस तरह वो अपने चर्चेज बनाने के लिए या कुछ ऐसा वो करने के लिए हो, तो वो एक अच्छा एक मिल जाएगा, ताकि लोगों को ईजिली राशन मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर हर घर में ये बात पहुंच जाएगी। सेकेंडली, इजाज़ आलम साहब, हम आपसे मुखातिब हूँ मैं। मुझे हमारे कराची से हमने एक मुहिम सैनिटरी वर्कर्स के लिए कोरोना वायरस से बचाव व आगाही मुहिम का आगाज़ किया था, और खुदावंद का बहुत शुक्र है जिसमें से हमारे साथ इंसार बरनी साहब ने सबसे पहले उस मुहिम में हमायत का ऐलान किया, और उसके बाद रवि हमारी, लेकिन कोई भी क्रिश्चियन मिनिस्टर ने इस चीज़ को मतलब कि कोरोना से बचाव के लिए ये सैनिटरी वर्कर्स वो तमाम मसाइल के हैं। अब मेरी काफ़ी स्टडी हुई है, इन चीज़ों को मैंने देखा। पहले तो एक था कि चीज़ खाली मिनॉरिटीज़ है, बल्कि दूसरे हमारे लोग भी हैं और भाई जो ये बेचारे काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी वो उनको बोला है कि जी इनको हिफाजती किट्स दें। तो उसके बारे में मैं आप थोड़ा सा बता दें। जी मिनिस्टर साहब। मुझे असल में ना वो समझ नहीं लगी बिल्कुल, अच्छा आवाज मिनिस्टर उतनी साहब, मैं हाँ जी, मैं अब बताता हूँ कि वो आवाज उनकी काम है, लेकर जो मुझे समझ आई है वो कह रहे हैं कि जो कराची है खासतौर पे, वहाँ पे जो कोरोना के बचाव के लिए उन्होंने कोई मुहिम शुरू की, तो उसमें कुछ दूसरे जो लोग हैं वो शामिल हुए, कुछ मिनिस्टर, लेकिन जो अकलीतों के जो वजीर हैं उस हवाले से कोई इस तरह शामिल नहीं हो सके। तो इस तरह वो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सैनिटरी सकता वर्कर्स है। को किस तरीके से उनको हिफाजती किट्स प्रोवाइड की जाए, कुछ ऐसा। हाँ, सैनिटरी वर्कर्स को, हाँ, उनके लिए अ, ऐसा है कि वो एक कोशिश हुई है, कुछ दोस्तों ने कोशिश की है जिसमें कि उनको जो है आपका माइक बंद हो गया जैसे। जी। तो प्रेसिडेंट वगैरह थे, तो आज मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, कल उनसे मुलाकात होगी। असल में मसला ये है कि देखें, हिफाजती किट्स के बारे में हम जो बात करते हैं, वो थोड़ी-सी इसमें ऐसा है कि हिफाजती किट हमेशा उनको ही दी जा रही हैं जो कि फ्रंट लाइन पे जाके हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी पिछले दिनों सेक्रेटरी बल्दियात से भी बात हुई थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा जी कि चूँकि हिफाजती किट मोस्टली जो है वो चाइना से आ रही हैं। तो इस वक़्त तरजीही बुनियाद ये है कि लोग तरजीही बुनियादों पर जो हमारे मेडिकल स्टाफ है उसको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये जिस तरह कोरोना वायरस इस जिस शिद्दत से आया है ये हमारे अ, ईरान में, पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में, तो वो उस तादाद में वहाँ से उतनी वो बनवा नहीं पा रहे, और अभी तक आपको पता है कि वक़्तन हॉस्पिटल का स्टाफ भी, आपको पिछले दिन आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो जी जो मेडिकल स्टाफ था उसने स्ट्राइक की। आपका माइक माइक बंद हो गया। आजाद साहब माइक जी। हेलो, जी, जी, कि आ रही है अभी आवाज। जी। हमें जो है किट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो वो वो कह रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम अपने मेडिकल स्टाफ को जो है वो किटें प्रोवाइड करें, उसके बाद फिर इनका नंबर आएगा। सर लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
یہ بات ڈکلیئر کر دی ہے صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو کہا ہے کہ ان کو پرووائڈ کرے. آج بھی میں کراچی باہر نکلا اور میں کچھ ہمارے کنٹونمنٹس اور سی بی سی اور جو بھی ہیں انہوں نے بےچارے انہوں نے گلوز تک نہیں پہنے, ان کو ماسک تک نہیں دیا. کٹ تو دور کی بات ہے, آپ بھی کم از کم ان کو صرف ماسک دے دیں, کچھ گلوز دے دیں, کوئی ایسی چیز دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو, یہ فیملی افیکٹس ہوں گے, یہ سب سے افیکٹ پڑے گا کیونکہ یہ بھی فرنٹ لائن پہ. اگر میرے کرونا کا مریض ہے, اگر وہ ماسک نیچے زمین پر پھینک رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ اگر ڈسٹ بین سے اٹھا رہا ہے, ان کے پاس تو وہ لکڑیاں سی ہیں, میں تو ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے وہ کچرا اٹھا رہے ہیں. کیونکہ میں نے جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا اسی وقت ہی یہ یہاں سے کراچی سے آواز اٹھائی تھی, آل اوور دا پاکستان ورلڈ وائڈ مجھے کالز آئی ہیں اور بہت اپریسیشن کیا گیا. لیکن ہمارے کرسچنس جتنے بھی منسٹر ہیں یا ایم پی ہیں, انہوں نے یہ مطلب کہ گوارا نہیں کیا یا ان کو شاید پسند نہیں آیا. پڑوسی ملک انڈیا میں انہوں نے سینٹری ورکرز پر سر پھول پھینکے, ٹھیک ہے, اور ہمارے لاہور کے اندر پولیس والوں نے ان کو گلدستے دیے اور بڑا ایک اچھا ایک ماحول دیا, اور یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. سیمسن صاحب, میرا خیال ہے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو ہمیں اس وقت لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے یہ لائیو ٹرانسمیشن پیش کی گئی ہیں, جس میں جناب صوبائی وزیر اعجاز عالم اگسٹین صاحب, ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا, اور جو موجودہ صورتحال ہے کورونا کے حوالے سے جو اقدامات گورنمنٹ لے رہی ہے, کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبائی وزیر کی حیثیت سے, انہوں نے بڑے واضح انداز سے بتایا کہ وہ خود کس طرح ایکٹیو ہیں, کیا اقدامات کر رہے ہیں, اور کس طرح پاکستان جو حکومت ہے وہ کر رہی ہے. اعجاز عالم صاحب, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آن لائن آنے کی تو آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تہمینہ رانا, آپ کے جو پینلسٹ ہیں, آپ کے فیصل الیاس, ناصر رضا اور سیمسن جوید صاحب, آپ کے بھی, کیونکہ آپ کی بدولت ہی یہ ساری چینل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان سے اجازت چاہیں گے ابھی. آپ سب کا بہت شکریہ. سیمسن صاحب, وڈ یو لائک ٹو سے سمتھنگ ایٹ دی اینڈ؟ مائک ذرا کھولیں اپنا. یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, تو اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر آپ کو پروگرام دے سکیں. تو تمینہ, آپ نے کچھ کہنا کہ ہم اجازت لیتے ہیں, ابھی ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید بڑھائیں. تو آخر میں یہی کہتا ہوتا ہوں میں کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں, اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں. اور پھر میں ایک دفعہ اوورسیز کو پھر دوبارہ کروں گا, کیونکہ میں بھی اوورسیز میں, ہم بھی اوورسیز میں, فادر جی ہم بھی اوورسیز میں رہتے ہیں, اور ہم یہ سننا نہیں چاہتے کہ ہمیں جو اتنا کچھ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ اس لائن میں لیا جائے کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہو بیٹھ کے, اور آپ بہتر کی طرف, اصلاح کی طرف بڑھے. اور جس طرح ناصر نے بھی کہا تھا کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں مدد تو کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے گروپ کے تھرو کر رہے ہیں. اگر وہ وہاں آلریڈی جو موجود گروپس ہیں ان کے جائیں, کیونکہ ہم نے اس وقت اپنے گروپ کو پروموٹ نہیں کرنا بلکہ انسانی جانوں کو بچانا ہے. تو سارے ایسے کانٹیکٹ رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو واقعی ہی کام کر رہے ہیں, وہ کریں تاکہ یہ چلے. اور کرونا کے اختتام کے بعد ہم جو ہماری ایک پلاننگ ہے تب تک ہی آگے بڑھے گی جب تک جو ہے عوام بچے گی. اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کب یہ کرونا کب ختم ہوگا, کوئی شور نہیں ہے. اکتوبر یہاں تھا, اکتوبر وہاں پہ, اپریل کہا جا رہا تھا, لیکن ابھی تک جاری ہے. تو آپ سب کا اور ہم سب کا خدا حافظ.
खुदा हमें हर आफत, मुश्किलात, मुसीबत से बचाए और ऐसे जो माली मुश्किलात का शिकार भी हैं लोग जिनको पैसे के लिए इस वक्त ज़रूरत है, खुदा उनको भी जो है उनके काम में बरकत डाले, उनके तमाम अखराजात को पूरे करे। हम पाकिस्तान और ब्रिटिश में रहने वाले ब्रिटिश और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जिंदाबाद। वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुदा हाफिज। बाय बाय। बाय बाय।